ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨ ਕੋਏ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵੀਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ। ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ। ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨ ਖਾਏ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ। ਮੰਨੈ ਪਥ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦਵਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ। ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ। ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ। ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ।
ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਗਸਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ। ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਤਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ, ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ। ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ। ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ, ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਾਪੋ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੋ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਗ ਅਪਾਰ, ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ। ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ। ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ। ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ। ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ। ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ। ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ। ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਭੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ।
ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਈਨ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵ ਹੈ ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਹੈ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜਾ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाट कड़िया है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਮਾਹਿ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਓਹੇ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦੋ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਅਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ
ਪਾਓ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार। चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सह सियाण पालख होए ता इक न चलै नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ਮਿਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ। ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਮਿਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ। ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ 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 ਮਿਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ। ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਮਿਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ। ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਏ ਰਾ। ਅਤ ਦੀ ਰਗ ਅਤ ਮੁਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ। ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੈ ਕਿਤ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ। ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੈ ਕਿਤ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ
सब को निवे आपको, पर को निवे न कोई। सब को निवे आपको, पर को निवे न कोई। तार तराजू तो लिए निवे सो गौरा होए। तार तराजू तो लिए निवे सो गौरा होए। गुण चंगियाया तत, गुण चंगियाया तत, गुण चंगियाया तत, गुण चंगियाया तत। मिठत नीवी नानका, गुण चंगियाया तत। मिठत नीवी नानका, गुण चंगियाया तत। अपराधी तू ना निवे, जो हंता मिर्गा है। अपराधी तू ना निवे, जो हंता मिर्गा है। शीस निवाए क्या थिए, जानी तक सुनते जाए। शीस निवाए क्या थिए, जानी तक सुनते जाए। गुण चंगियाया तत, गुण चंगियाया तत, गुण चंगियाया तत, गुण चंगियाया तत। मिठत नीवी नानका, गुण चंगियाया तत। मिठत नीवी नानका, गुण चंगियाया तत। गुण चंगियाया तत, गुण चंगियाया तत, गुण चंगियाया तत, गुण चंगियाया तत। मिठत नीवी नानका, गुण चंगियाया तत। गुण चंगियाया तत, गुण चंगियाया तत।
इच्छा नहीं बाझे। केवल भगत कीर्तन संग राचे। केवल भगत कीर्तन संग राचे। काहू फल की इच्छा नहीं बाझे, इच्छा नहीं बाझे। काहू फल की इच्छा नहीं बाझे, इच्छा नहीं बाझे। केवल भगत कीर्तन संग राचे। केवल भगत कीर्तन संग राचे। काहू फल की इच्छा नहीं बाझे, इच्छा नहीं बाझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। काहू फल की इच्छा नहीं बाझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज यहाँ पर बड़ी गहरी विचार कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रीमद् भगवत गीता का जो सार है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मॉरल है, ये तत्व है और ये बेस है। ध्यान से समझना। अगर कहते हैं ना कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी का सार क्या है, तो मूल मंत्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर श्रीमद् भगवत गीता का सार लेना है तो कर्म कर फल की इच्छा मत कर। ये बेस है, ये मेन पॉइंट समझाने के लिए ही सब कुछ समझाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
क्योंकि ये फल की इच्छा जो है ना, ये ऐसी चीज़ है साथ संगत जी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव हमारा जन्म ही इसकी वजह से होता है, मरण भी इसी की वजह से होता है, फिर से जन्म इसी की वजह से होता है। ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है जब तक इच्छा चलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में यहाँ पहुँचना ही पड़ेगा, इस सीढ़ी पर पहुँचना ही पड़ेगा, इच्छा खत्म करनी ही पड़ेगी। ये जो पढ़ाई कर रहे हैं ना परमार्थ की, एक दिन ऐसा आ जाएगा सिवाय गुरु नानक को पाने की कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज तो इच्छा लेकर आए ना कि चालिया करेंगे तो ये इच्छा पूरी होगी। आज तो हमारी ये इच्छा है, कोई गलत नहीं है ये। हम क्योंकि महापुरुष समझाते थे जब लगे सांस तब लगे आस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान श्वास ले रहा है तो जीवित है, हर श्वास के साथ एक इच्छा चलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने श्वास उतनी इच्छाएं, यहाँ तक के श्वास खत्म हो जाते आदमी मर जाता है, फिर पूछते तेरी अंतिम इच्छा क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छाएं नहीं खत्म होती और वही इच्छा फिर से जन्म दिलाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतकाल में जैसी इच्छा मन में रही कि ये मैं नहीं कर पाया जन्म, वैसा अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे सांप की जोनी, अंतकाल जो लड़के सिमरे सूअर की जोनी, अंतकाल जो मंदिर सिमरे भूत की जोनी प्रेत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी है ना, अंतकाल नारायण सिमरे मुक्त पीतम्बर वाके हृदय बसे। बड़ा शॉर्ट में ले रहा है बात को कि जैसी इच्छा होगी वैसा जन्म होगा, इच्छा खत्म जन्म खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पर पहुंचने के लिए पदार्थ से लेके परमार्थ तक पहुंचने की सारी पढ़ाई चल रही है। एक्चुअली आज हम लालच में बैठे हैं कि कुछ मिलेगा, क्योंकि ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी हमेशा कहा करते थे, दास भी अक्सर ये बात कहता है कि 70 80 साल के मैंने बच्चे देखे हैं सत्संग में। बच्चे क्यों कहा है? बच्चे को स्कूल भेजो तो नहीं जाता तो क्या कहते हैं? चॉकलेट देते चला जाओ, चला जाता है। स्कूल जाएंगे तो क्या मिलेगा? चॉकलेट। ट्यूशन जाऊंगा तो क्या मिलेगा? चॉकलेट। आज भी मेरे पास आते हैं, अमृतुल्य उठेंगे तो क्या मिलेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बच्चे ही तो हैं, क्या मिलेगा? तब उठेंगे। गुरु को पाने की तो इच्छा ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और यहाँ पर बात हो रही, गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, बड़ा प्यारा शब्द है साथ। मुझे एक बार महापुरुषों ने अपने पास बिठाया, अपने पास बिठाकर मुझे कहने लगे, ये शब्द निकाल, केवल भगत कीर्तन संग्राच्य, ये जो शब्द हम श्रवण कर रहे हैं। और कहने लगे, मुझे तुझे इस अवस्था में देखना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, तुझे एक दिन ऐसा बनना है, तुझे ऐसा बनना पड़ेगा। ये जो शब्द है इसके अनुसार तेरा जीवन होना चाहिए, और मैं तुझे एक दिन ऐसा बनता हुआ देखना चाहता हूँ। और कितनी कमाल की पहलू है इसमें साथ संगत जी, कि कीर्तन करना है, उस्तत करनी है, पर बिना किसी इच्छा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं, आज तेरे सामने लाख लोग बैठे हैं, तो कीर्तन कैसे कर रहा है? जब कोई ना बैठा हो तब भी तेरा कीर्तन वैसा ही हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहूँ फल की इच्छा नहीं बाचे, कोई इच्छा मन में ना हो कि लोग वाह वाह करें, कोई इच्छा मन में ना हो कि बहुत ज्यादा लोग जुड़े, कोई इच्छा मन में ना, सारी इच्छाएं खत्म सिवाय गुरु को सुनाने के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, ऐसा कीर्तन कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हम सबके लिए ज्ञान है। काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत। भगत असली वो जो कीर्तन उसकी उस्तत करे, केवल उसे पाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वैष्णो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न। वैष्णो का है विष्णु भगवान की उपासना करने वाला। विष्णु भगवान यहाँ पर क्या है? निरंकार को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस अकाल पुरख, उस वाहिगुरु, असली भगत वो है, असली वैष्णव वो है जिस ऊपर सुप्रसन्न, जिस पर वो प्रसन्न हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विष्णु की माया ते होए पे नहीं। विष्णु भगवान की माया क्या है? जो माया से बच जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माया भी उसकी रची हुई है सारी, है ना? मायापति कहते हैं ना, उसी की रची हुई माया से बच के निकल जाए, वो है असली विष्णु जी का भगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
उस पर पूरी प्रसन्नता होती है कि इम्तिहान लिया और इम्तिहान में से बच्चा पास हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निरंकार ने इम्तिहान लिया पर इम्तिहान में से पास हो जाए, अपनी माया डाली पर वो माया में से निकल जाए। वैसनो सो जिस ऊपर सु परेशानी बेसनी की माया ते होए पिन, कर्म करे तो होवे नहीं कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म करें पर नहीं कर्म हो जाए, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर मैं कोई कर्म कर रहा हूं और उसके पीछे मुझे कुछ पाने की इच्छा है, ध्यान से समझना, चाहे वो नेक काम है, उसके पीछे फल पाने की इच्छा है ना, तो अगर मुझसे कोई गलती होगी उसमें तो उसकी सजा भी है। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, बड़ा कीमती पॉइंट है। अगर ये बात समझ में आ गई ना तो किसी भी गलती का, किसी भी पाप का सजा नहीं मिलेगी कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर मैं कोई कर्म कर रहा हूँ और कर्म करते हुए मुझे इच्छा है फल की, और उस कर्म करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाती है उस कर्म को करते हुए, तो उसकी सजा है। किसी का दिल दुख जाए, मैं नहीं चाहता पर हो जाए, सजा है, क्योंकि मैंने जो कर्म किया है उसके पीछे फल की इच्छा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कर्म करके फल की इच्छा नहीं है, तो जब पुण्य की इच्छा नहीं है तो पाप भी नहीं लगता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे मुझसे 100 गलतियां हो जाए, अगर मेरी फल की इच्छा नहीं है, पुण्य नहीं कमाना मुझे सिर्फ गुरु को प्रसन्न करना है, तो अगर मुझसे गलतियां हो भी जाए तो उसकी सजा भी नहीं है, क्योंकि अगर पुण्य नहीं है तो पाप भी नहीं है। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुण्य की इच्छा से करूंगा कोई काम तो पाप भी लगेगा, अगर पुण्य की इच्छा नहीं है तो पाप की भी वहां कोई जगह नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, तू मार। कहने लगा इतने लोगों को मारूं, उसका पाप। कहने के किस बात का पाप, तू सिर्फ फर्ज निभा। तू अगर ये सोचकर युद्ध करेगा कि तुझे युद्ध जीतना है, किसी को हराना है, तो फिर इनका पाप तुझे लगेगा। तू युद्ध इसलिए कर क्योंकि तेरा फर्ज है युद्ध करना, तो इन्हें कितनों को भी मार, कोई पाप नहीं लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मार पहले भी रहा है, बात सारी विचारों की है कि सोच क्या रहा है। तो हमेशा दास कहता है, बानी कहती है ना कि जो जी हो सो वह मुँह का कहे अवाओ, कि हम दुनिया ये देखती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, गुरु ये देखता है कि कर क्यों रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक घटना याद आ गई मुझे, सिर्फ नाम नहीं याद। युद्ध चल रहा है, हजरत कौन से थे मुझे नाम नहीं याद, मुसलमानों में कोई पीर थे। युद्ध चल रहा है, युद्ध के मैदान में जंग हो रही है। वो भी तलवार चला रहे हैं, मार रहे हैं दुश्मनों को, दुश्मन भी उन पर हमला कर रहे हैं। अचानक उन्होंने तलवार रोक दी और दुश्मन हावी हो गया, तो बहुत सारे सैनिक आगे उन्हें बचा के लगे। कहने लगे आपने तलवार रोक क्यों दी, लड़ना क्यों बंद कर दिया। कहने लगे मुझे गुस्सा आ गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं क्रोध में तलवार चलाने लगा था। तो कहने लगे तो फिर और कैसे चलाते। कहते नहीं, मैं युद्ध कर रहा हूँ क्योंकि युद्ध करना मेरा फर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा कोई दुश्मन नहीं, जुल्म करने आ रहा है, रोकने के लिए मुझे मारना पड़ रहा है, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं। मैं लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे लड़ना है, पर क्रोध में मारने जा रहा था मैं, तो ये तो कर्म हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को, गहराई को समझ रहे हो। मार तब भी रहे थे, मार अब भी रहे हैं, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा था, तीर पर सोना क्यों लगाया है कि सामने वाला जब आ रहा है हमारे उससे कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि वो जुल्म करने आ रहे हैं, हमें मारना पड़ रहा है। तीर पे सोना इसलिए लगाते हैं, अगर जख्मी हो जाए तो उसके मन पट्टी के काम आ जाए, अगर मर जाए तो उसके कफन दफन में काम आ जाए वो सोना। विचार देखो, सोच देखो, क्यों किसी से दुश्मनी है ही नहीं, निर्वैर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये क्यों है, कर्म करे तो होवे नहीं कर्म। कर्म कर रहा है पर फल की इच्छा नहीं है तो नहीं कर्म हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तिस वैष्णव का निर्मल धर्म, असल में वही असली भगत है निरंकार का, विष्णु का, जिसने धर्म कमाया है, जो कर्म करते हुए नहीं कर्म हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर आगे क्या होता है, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, उसके हृदय में हमेशा गोपाल का सिमरन चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में भी तन में भी सब ऊपर होवत कृपाल, उसके भीतर दया भरी होगी, हर एक पर दया करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुश्मन पर भी दया करेगा क्योंकि उसका कोई दुश्मन है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
अब इस अवस्था तक पहुंचना, गुरु ही पहुंचाए तो पहुंचाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप दृढ़ अवरे नाम जपावे, खुद अपना नित्यनेम दृढ़ करे, नाम जपे और फिर दूसरों को जपाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक ओ बैसनो परम गति पावे, वो परम गति को प्राप्त होगा, वो सच्चा भक्त होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी प्यारी पंक्ति है साथ संगत जी। ये जो थोड़ी देर में जो ज्ञान मिला है ना, इस पर थोड़ा घर में जाके विचार करना, ज़रूर विचार करना। थोड़ा गहरा है, बातें थोड़ी गहरी हैं, पर अगर ये समझ में आ गई ना जो दास कह रहा है, जीवन का जीने का तरीका बदल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोच बदल जाएगी, सोच से इंसान बनता है। जैसी सोच, बुरे इंसान की बुरी सोच, नेक इंसान की नेक सोच। अगर कर्म का सिद्धांत समझ में आ गया कि अगर फल की इच्छा रखे बिना कोई कर्म करेंगे, देखिए खिलाते बहुत लोग हैं गरीबों को, बहुत लोग दान करते हैं, पर पीछे इच्छाएं होती है। काले कुत्ते को खिलाते हैं, क्यों? वाइट दूसरे ब्राउन कुत्ते को नहीं खिलाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खिला रहे हैं, लगेगा कि भाई बहुत नेक काम कर रहे हैं, नहीं, क्या का नेक काम, किस बात का नेक काम? वो तो अपना फायदा सोच रहा है कि काले कुत्ते को ही खिलाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे कर्म करने के पीछे कितना कुछ होता है। एक कुत्ते को भी खिला रहे हैं 4 बिस्कुट, तो उसके पीछे भी हमारी कोई इच्छा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर बात हो रही है, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, तू बड़े से बड़ा धर्म कर ले, अपने आप को बलिदान कर दे, पर पीछे कोई इच्छा ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल एक इच्छा रह जाती है, एक इच्छा उसे पाने की, केवल भगत कीर्तन संगराज है। बस उसकी उस्तत, उसकी प्रसन्नता मिल जाए, बस एक ही मकसद होना चाहिए जीवन का। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं। आइए एक बार गा लें। केवल भगत कीर्तन संगराज, केवल भगत कीर्तन संगराज, इच्छा नहीं बाचे, इच्छा नहीं बाचे, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, इच्छा नहीं बाचे। से बोलिए धन गुरु नानक। एक ही इच्छा रह जाती है, गुरु की प्रसन्नता। बस किसी प्रकार गुरु की प्रसन्नता मिल जाए, जब ये अवस्था बन जाए ना किसी की, जहाँ पर गुरु साहब जी चाहते हैं कि हम सब पहुँचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी की रचना क्यों की है बताई है, ये क्लास भी है, यहाँ पहुँचना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए, इच्छा करनी कोई बुरी बात नहीं है। हम दुनियावी लोग हैं, हमें घर भी चलाना है, दुकान भी चलानी, बच्चे भी पालनी, कई तरह की मुसीबतें आती हैं, इच्छाएं होती हैं। इच्छा करना गलत बात नहीं है, इच्छा की पूर्ति गलत तरीके से करना वो पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक 10 दोनों बातें कर रहे हैं यहाँ पर, एक अवस्था वो, एक अवस्था ये हमारी जो है। यहाँ पर भी 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक अपनी इच्छा करने के लिए उद्यम करते हैं, एक हेरा फेरी करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छा करना बुरी बात नहीं है। आपकी इच्छा है कि मेरा वीज़ा लग जाए, मैं अमेरिका में जाऊं, वहाँ सेटल हो जाऊं, ये कोई गलत बात नहीं। पर वीज़ा ना लगने पर रोने लग जाना, कंप्लेन करने लग जाना कि गुरु तू है ही नहीं, ये गलत बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिली है, सिंपल सी बात फिलॉसफी दास समझा दे, सिंपल 2 पंक्तियों में, जो महापुरुष समझाया करते थे बार बार। अगर तेरे जीवन में कोई घटना घटी है, तभी घटी है अगर उसकी इच्छा है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसकी इच्छा ना हो तो नहीं घटेगी। इसलिए अपनी इच्छा को उसकी इच्छा में शामिल कर ले। ओहो जा बन जावा जो तेरी मर्जी है, जो उसकी मर्जी उसमें अपनी मर्जी शामिल कर लो, दुख खत्म।
नहीं तो अपनी मर्जी लेकर रोते ही रहोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इच्छाओं का क्या है, खत्म होते ही नहीं, मरने के बाद भी नहीं। ये जो प्रेत योनियाँ होती हैं इच्छा की वजह से ही होती है। हम जन्म लेकर बैठे हैं, इच्छाओं की वजह से बैठे हैं। आज कोई अमृतवेले आ रहे हैं, रोज़ नित्यनेमी है, उसका मन करता है कि मैं भी कोई मंत्री बनूं या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं। रोज़ यही इच्छा लेके बैठा होता है मन में। मर जाएगा, उसके पुण्य बन जाएंगे, जन्म होगा फिर मंत्री के घर में मंत्री बनने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा। कर्मी आवे कपड़ा नदरी, अगर इच्छा रखी है, कर्म हो गया, कर्म हो गया तो कपड़ा और मिल जाए। कपड़ा का है शरीर को, कर्मी आवे कपड़ा। और अगर कुछ नहीं मांगा, केवल कीर्तन करते रहे, केवल नाम जपते रहे, मांगा कुछ नहीं, उसकी नदर हो जाएगी, नदरी मोक्ष द्वार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोक्ष की प्राप्ति उसके हृदय में हमेशा का सदैव शांति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सचखंड में वासा। अगर इच्छाएं खत्म हो जाए तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी इच्छा, इसके कई पहलू हैं साथ संगत जी। जो संत महापुरुष होते हैं उनकी एक ही इच्छा रह जाती है, गुरु की प्रसन्नता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार महाराजा रंजीत सिंह जी आए, बड़ी प्यारी घटना है। महाराजा रंजीत सिंह जी, इनके जैसा दूसरा राजा नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब महाराजा रंजीत सिंह जी का राज था ना, दिल्ली से लेके हिमाचल तक लेके कितनी सारा राज्य पंजाब का था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो बाद में टुकड़े 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 करके छोटा हो गया। सबसे बड़ा राज्य हिंदुस्तान में जो था वो पंजाब था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उस पंजाब में ना शराब अलाउ थी, ना तंबाकू अलाउ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और श्री अमृतसर साहब के इलाके में खास करके मांस भी अलाउ नहीं था। ये महाराजा रंजीत सिंह जी के समय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और उनकी विचार कमाल की, उनकी सोच। हैदराबाद के निजामुद्दीन ने कोई सोने की चांदनी भेजी उनके तख्त पर बांधने के लिए। हैदराबाद का जो निज़ाम था वो बहुत उनको प्रेम करता था, उनका सत्कार करता था। बड़ी प्यारी, बड़ी महंगी, कई महीनों की मेहनत के बाद कारीगरों ने एक चांदनी तैयार की, सोने की, पूरे सोने की जंजीर, बारीक जंजीरों से बनी हुई उस जमाने में। महाराजा रंजीत सिंह जब दरबार में आए तो देखा कि इतनी प्यारी चांदनी टंगी हुई है तख्त के ऊपर, बड़ी सुंदर। तो एहलकारों से पूछा, भाई ये कहाँ से आई? कहने लगे निज़ामुद्दीन, हैदराबाद के निज़ाम ने आपके लिए भेजी थी, तोशेखाने में पड़ी थी, हमें बहुत प्यारी लगी तो सोचा आपके तख्त के ऊपर लगा दें। महाराजा रंजीत सिंह जी नाराज़ हो गए, कहने लगे उतारो इसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो एहलकार घबरा गए कि शायद हमसे कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई है। किसी ने पूछा, महाराज कोई गलती हो गई हमसे, बताइए, गलत तरीके से बांध दी है या क्या किया है? कहने लगे नहीं, इतनी प्यारी चांदनी, इतनी खूबसूरत, ये मेरे दरबार के लिए नहीं, ये गुरु रामदास जी के दरबार के लिए होनी चाहिए। और वो चांदनी खुलवा कर गुरु रामदास जी के सिंहासन के ऊपर बांधी गई। आज भी जब जलाव लगता है ना साथ संगत जी, आप देखते होंगे जब कोई गुरुपुरब आता है, आप एक फोटो देखो, अंदर एक चांदनी बनी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोने की, ये वही चांदनी है जो महाराजा रंजीत सिंह जी ने अपने तख्त से उतारवा कर, बैठे नहीं उसके नीचे, हरमंदिर साहिब में गुरु रामदास जी के तख्त के ऊपर लगाई। ये क्या है? अगर कोई इच्छा है भी, कोई चीज अच्छी लगी भी, तो वो गुरु के लिए, अपने लिए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के लिए। विचार में सिर्फ है ही गुरु, इच्छा है पर है गुरु के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डायरेक्शन ही बदल गई। गुरु अमरदास जी, ऐतिहासिक घटना। गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी को भेजा, किसी कारण, कोई किसी काम से लाहौर भेजा। गुरु रामदास जी वहां गए, क्या देखते हैं कि बड़ा प्यारा कुर्ता है, बड़ा ही प्यारा कुर्ता, बाजार में घूम रहे हैं, कुर्ता है बड़ा प्यारा। अब उतने पैसे नहीं है उनके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पैसे नहीं कुर्ता खरीदने के, और मन कर रहा है कि ये कुर्ता तो गुरु अमरदास जी को पहनाना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में ये नहीं है कि कुर्ता मैं ले लूं, इतना प्यारा कुर्ता, ये तो गुरु अमरदास जी को पहनना चाहिए।
विचार ही सिर्फ गुरु के। इच्छा है, इच्छा ही है ना ये कि कुर्ता पहने, पर अपने लिए नहीं, गुरु के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब पैसे नहीं है उनके पास। यहाँ पर गुरु रामदास जी ने कमाल कर दिया और ज्ञान दे दिया कि सुरती की ताकत कितनी होती है। पैसे पूछे तो पैसे जेब में उतने हैं नहीं, तो कहने लगे नहीं ये तो गुरु अमरदास जी को पहनाना है। तो कुर्ते को देखकर मन आंखें बंद किए और भावना से कुर्ता पहना रहे गुरु अमरदास जी को, ऐसे करके। वही कुर्ता खरीदा नहीं है, अपनी भावना से कुर्ता पहना रहे गुरु अमरदास जी को, कि वो बाਹਾਂ ऊपर कर रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं, ये हाथ डाल रहे हैं, ऐसे सीधा कर रहे हैं। और वहां पर गुरु अमरदास जी बैठे गोविंदवाल साहब में, संगत के बीच में, कभी ये हाथ ऊपर कर रहे हैं, कभी वो हाथ ऊपर कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुर्ता पहन रहे हैं। सेवादार ने पूछा पातशाह ये क्या कौतक है? कहने की क्या करूं, वहां पर बैठा मुझे कुर्ता पहना रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पैसे उसके पास है नहीं, खरीद के ला नहीं सकता, तो मुझे सुरती से पहना रहा है और हमें पहनना पड़ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी और गुरु रामदास जी की उसी समय की घटना। और उन्होंने, आम का मौसम था, आम ले लिए थोड़े कि गुरु अमरदास जी को खिलाएंगे, बड़े मीठे आम है, ले लिए। अब लाहौर से उस जमाने में ट्रेन और हवाई जहाज तो होते नहीं थे, घोड़े पे जाना है। गोविंदवाल साहब पहुंचते पहुंचते रास्ते में आम पककर बहने शुरू हो गए। अब सोचा गुरु अमरदास जी तक पहुंचने तक तो खराब हो जाएंगे। सुरती से आम खाया खुद गुरु रामदास जी ने, और मन में ये भावना लाए कि गुरु अमरदास जी खा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वहां पर गुरु अमरदास जी कह रहे हैं आम का स्वाद आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रेम विचार है, खाने की भी इच्छा है तो गुरु के लिए। बाबा कुंदन सिंह जी जिन्होंने दास को कीर्तन की दात बख्शी, एक बार हरि के पत्तन के वहां से गाड़ी गुजर रही है, नानक सर के पास की जगह, बड़ी प्यारी जगह है हरि के पत्तन। वहां पर पेड़ में देखा कैरियां लगी हैं, जिसे अंबिया कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैरियां लगी, कहने लगे कैरी तोड़ो, इसकी चटनी बनानी है। सेवादार कहने लगे रोज भोगल, आज महापुरुषों का दिल कर रहा है कैरी खाने का, चटनी बनाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जब कैरी तोड़ कर लाए तो वहाँ जाके कहने लगे चटनी बना के लो, गुरु साहब जी को भोग लगाना है, कैरी की चटनी का भोग लगाना है आज खाने के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कैरी देखकर क्या ध्यान आ रहा है? श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को भोग लगाना है भोजन के साथ, कैरी की चटनी का, अंबियों की चटनी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छा है पर गुरु के लिए, अपने लिए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ तक पहुंचना है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। केवल भगत कीर्तन संग राचे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। बोलिए धन गुरु नानक। जैसे कि दास ने पहले भी कहा, इच्छा होना स्वाभाविक है। हमारे मन में इच्छाएं जागती हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, स्वाभाविक है। पर ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ तक एक दिन पहुंचना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी एक बड़े कमाल के वचन कहा करते थे। कहते थे लोगों की इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हर एक का सवाल होता है, मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हुई, क्यों नहीं होती? अभी इसको दुनियावी तौर पर ले लेते हैं। आपकी कोई इच्छा है, कोई किसी ओहदे को पाने की या ज़्यादा धन पाने की,
इच्छा है मन में, पर वो पूरी नहीं हो रही, आप कोशिश भी कर रहे हो, नहीं हो रही। इसकी वजह क्या है? सबसे मूल कारण, कोई भी इच्छा हो, परमात्मा को पाने की इच्छा हो, चाहे दुनियावी इच्छा हो। एक बैंक है, आप चेक काटते हो, चेक बाउंस हो जाता है। क्यों हो जाता है? अकाउंट में बैलेंस नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब जब अकाउंट में बैलेंस नहीं है, चेक तो बाउंस होगा ही ना। आप अरदास कर रहे हो मेरा ये काम हो जाए, नहीं हो रहा, इच्छा पूरी नहीं हो रही। क्यों? बैलेंस नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कमाई नहीं है, कोई नित्यनेम नहीं है, निंदा करके सब खत्म कर दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कमाई की भी है तो निंदा करके गवा दिया है। दास, ये बात फिर से दोहरा दे। महापुरुषों के पास बैठा था, कोई आया कि मैं अमृत वेले भी उठता हूँ, नाम भी जपता हूँ, पता नहीं मेरे काम क्यों नहीं हो रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने सीधा सीधा एक ही सवाल पूछा, निंदा करते हो? आंखें नीची हो गई। कहने लगे अमृत वेले उठ के बूंद बूंद करके घड़ा भर रहे हो, है ना, और निंदा करके सारा गवा लेते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा जी वचन करते थे, कोई 2 घंटे बैठ के सत्संग करे, बाहर जाके 10 मिनट चाय पीते पीते किसी की बुराई कर दे, सब खाली होके गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम कितने घंटे करते हैं हमें ही पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रस लेते हैं, बैलेंस नहीं बचता। अगर कोई जमा कर ले, पुण्यों के आधार पर सारी सृष्टि खड़ी है, पुण्यों के आधार पर। जैसे पुण्य वैसे औदा होता है। सिंपल है, पात्र होगा, समझो मेरे पास कटोरी है, मैं कहूँ बाल्टी डाल दे इसमें, सब बह जाएगी, बचेगा क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी पात्रता नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है वो दांत लेने की जो आप हम मांग रहे हैं, वो डाले किस में? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर बड़ा ओहदा दे दिया सब गवा लेंगे, उसे दिख रहा है वो नहीं देगा। पिता चाहे अंबानी हो, अरबपति हो, करोड़पति हो, बच्चे को 10 लाख नहीं दे देगा खर्च करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे पता है इसकी कैपेसिटी नहीं है, 100 देगा, 200 देगा, 200 रुपये दे देगा। बच्चे को कोई लाख रुपए नहीं खर्च करने के लिए दे देता। हम बच्चे हैं, हम मांग रहे हैं करोड़ की चीज, क्यों देगा वो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उतनी लायक ही नहीं है हमारी। जो लायक है उसे मिल जाता है, उसे मांगना भी नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाल्टी आएगी तो बाल्टी भरी जाएगी, कटोरी आएगी कटोरी भरी जाएगी, जैसा पात्र होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और पात्र बनाने का तरीका है। पात्र बनाना चाहते हो बड़ा, तो तरीका बताया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए, अगर ये तरीका अपना लिया तो जो चाहे मांग लो, दुनियावी चीज सब मिल जाएगा। पाशा कहते जो मांग मैं तुझे देता हूं। अपना बर्तन तो बड़ा कर ले, और बर्तन बड़ा करने का तरीका है ये। श्रवण कीजिए। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जागे वस है काम देना, सो ऐसा ध्याये मेरे जीने, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कह रहे हैं, तू चाहते तेरी हर इच्छा पूरी हो, सारी इच्छाएं पूरी होंगी जो तू चाहता है, दुनियावी भी परमार्थ की भी। एक काम कर ले, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जहाँ के वस है काम देना, काम देन जिसके बस में है मालिक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सो ऐसा हर ध्याई, क्यों नहीं जपता नाम? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, कोई अमीर आदमी उसका नित्यनेम भी उतना ज्यादा हो, अगर गुरु ने 1 से 2 दुकान कर दिया, नित्यनेम बढ़ा दो, 3 कर दिया बढ़ा दो, क्योंकि पतंग जितनी ऊंची जाएगी पीछे डोर उतनी लंबी चाहिए। अगर डोर छोटी पड़ गई पतंग हाथ से छूट जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितना ज्यादा गुरु ने कृपा की है उतना नित्यनेम बढ़ाओ तो वो कृपा टिकी रहेगी, और जितना नित्यनेम बढ़ाते जाओगे कृपा उतनी बढ़ती जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई अमीर आदमी खड़ा है, दास ने पहले भी एक बात बताई, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैं ऐसे 2 शख्सियतों से मिल चुका हूँ इंडिया की बड़े, जिनके नाम आते हैं, जिन्हें जैसे अंबानी वैसे वो 4-5 ही लोग हैं। उनके बंगले में गया, उन्होंने बुलाया, वहाँ गया तो क्या देखा, मैं हैरान हो गया। फिर मुझे बाबा नंद सिंह जी के वचन याद आ गए। सच में ऐसा है, हर चीज़ नाम के आश्रय खड़ी है। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, और हमको लगता होगा कि वो क्या नाम जपते होंगे और क्या उनके पास समय होगा। नहीं,
खुद लंदन में बैठे हैं, जब मैं घर में गया तो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उनके नौकर चाकर मेरी सेवा कर रहे हैं और नौकरों से कह रहे हैं अच्छे से सेवा करना है इनकी। तो मैंने फ़ोन पे नौकर पूछे तो बाबा जी के कमरे में ले गए, वहाँ पे श्री गुरु गोविंद साहब जी का प्रकाश है। मैंने जब माथा टेका तो वहाँ कैमरे लगे हुए हैं बड़े बड़े। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे ये जहाँ भी होते हैं, बिजनेस के टूर में इन्हें आना जाता रहता है, कहीं भी हो। हमें फिक्स है कि अमृत वेले यहाँ पे पूरे 5 वाणी का पाठ और सुखमनी साहब जी का पाठ जोर से बोल के करना है और ये वहाँ बैठ के सुनते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और जहाँ से भी गलती होती है बताते हैं कि यहाँ पे तुमने गलती किया था, एक एक अक्षर सुनते हैं। ऐसा नहीं कि लगा के सो गए या उन्हें काम पे लगा दिया। पार्टी सिंह पाठ कर रहे हैं बाबा जी के कमरे में बैठ के अमृत वेले 2:15 2:30 बजे, वो जहाँ भी होते हैं दुनिया में, लंदन में, अमेरिका में, बैठकर पाठ सुनते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला संभालते हैं और कहते ये तो कुछ भी नहीं, इनके माता जी तो नीचे कमरा दिखाया, बस दिन रात सुखमनी साहब जी का पाठ ही करते रहते थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हर चीज नाम के आश्रय पे खड़े। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई बड़ा इंजीनियर है, नाम के आश्रय है, जपा है नाम। कोई कहे अपनी मेहनत से हूँ, तो रोड पर मजदूर मेहनत करते हैं, क्या मिलता है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मेहनत जरूरी है, मेहनत पे ही नजर होती है, पर पीछे खड़ा होता है नाम। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम के आश्रय पे सृष्टि खड़ी है, नाम के आश्रय पे औहदे कैसे नहीं मिलेंगे? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई गरीब है, गरीबी का सताया हुआ है, करके देख लो दास कहता है। दास ने कितनी बार ये बात कही है, कितनी घटनाएं याद आ गई, कितनी सारी। क्या कहा था बाबा ईश्वर सिंह जी ने? 40 माला मूल मंत्र का नेम कर लो। कोई कीर्तन सुनता नहीं था, प्रोग्राम नहीं मिलता था। भाई सुरजन सिंह जी रागी नेम करना शुरू किया, 40 माला मूल मंत्र अमृत वेले का, लाइन लग गई प्रोग्रामों की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सेठ ने गाड़ी दे दी कि गाड़ी ले जाओ हमारी, आप पैदल आए हो, आपके पास तो टांगे के पैसे भी नहीं, गाड़ी ले जाओ। शॉर्ट में बता रहे दास। पहली बार कीर्तन दीवान मिला, वहाँ कीर्तन किया तो वो सेठ गुरु आके बैठ गया ना हृदय में, मूल मंत्र। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सेठ कहने लगा मेरी गाड़ी ले जाओ। कहने लगे हमें गाड़ी चलानी नहीं आती। तो कहने के ड्राइवर भी ले जाओ, उसकी तनख्वाह। कहते तनख्वाह कौन देगा? कहने हम दे देंगे। कहते ये तो हाथी दरवाजे में बांधने वाली बात हो गई, पेट्रोल कौन डलवाएगा? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे पास इतने पैसे नहीं। कहने लगे कि कुछ लिख के दिया कि फलानी पेट्रोल पंप से जाके रोज भरवा लिया करो, पैसे मैं भर दिया करूंगा, ले जाओ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे कोई 1 रुपए की बात नहीं पूछता था उस जमाने में। गाड़ी दे दी, ड्राइवर दे दिया, उसकी तनख्वाह भी वो देंगे, पेट्रोल के पैसे भी वो दे रहे हैं, ये क्या है? बाबा ईश्वर सिंह जी ने दे दिया नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन पहले भी करते थे, कोई सुनता नहीं था, अब करते तो हरमंदिर साहब की परिक्रमा भरी होती है। क्यों? पीछे खड़ा है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेहनत के साथ कहीं नाम शामिल हो जाए, चमत्कार हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छा पूर्वक तेरी कोई भी इच्छा है, गुरु रामदास जी कहते हैं सर्व सुखदाता, हर जा के वैसे है काम देना, सो ऐसा हर त्याइए मेरे जीड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। आगे श्रवण कीजिए। जप मन सत्यनाम सदा सत्यनाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित्य त्याइए हर पुरख निरंजना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल हुई है। केवल दुनियावी इच्छा तेरी पूरी नहीं होगी, तेरा यहाँ पर भी मुख उजला रहेगा, लोग तेरी रिस्पेक्ट करेंगे। और मरने के बाद जहाँ जाएगा सचखंड, वहाँ पे भी तेरी रिस्पेक्ट होगी, वहाँ पर भी तेरा मुख उजला होगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हलत पलत मुख उजल हुई है, पर कब कैसे? अगर तू नित्य ध्याय हर पुरख निरंजना, अगर तू नित्य नेम संभालेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। नित्य कभी कभी नहीं लिखा, ये कभी कभी कर लेना, नित्य ध्याय। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। चालिया कर लेना, बाद में सो जाना नहीं, नित्य ध्याय। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो चालिया दास इसी उम्मीद से करता है कि हर साल, और गुरु की कृपा है, हर साल कृपा होती है, पर मेरा मन करता है किसी एक का भी ना छूटे नित्य। बहुत सारे लोग चालिया के बाद छोड़कर बैठ जाते हैं, फिर चालिये में करते हैं। चालिया करते ही इसके लिए कि नित्य नेम बन जाए। संभाल लो, मांग लिया करो, ये देता है, बैठा है देने के लिए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कि ना छूटे, चालिये के बाद भी ना छूटे।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं एक बार महापुरुष कहने लगे, चालिया शुरू करना था, महापुरुषों के वचन सुना रहे, मैं नहीं कह रहा, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं। कहने लगे चालिया शुरू होने जा रहा है, जो समय से पहले आकर बैठेगा, ध्यान देना, उन्होंने 3 वचन किए थे। जो समय से पहले आकर बैठेगा, समय से पहले दाते ले जाएगा गुरु से, जो उसकी किस्मत में नहीं भी लिखी वो भी मिल जाएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय से पहले मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट कहा, जो 40 दिन नेम निभा लेगा उसकी एक इच्छा पूरी गुरु करेगा। नेक इच्छा हो, बस एक इच्छा कोई भी रख के बैठ जाओ, गुरु अवश्य पूरी करेगा। कह लेंगे हम जिम्मेदार हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर कहा, जो नित्य नेम संभाल लेगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, 40 के दिन नहीं, हमेशा के लिए अमृत वेला संभाल लेगा, गुरु उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। परथाई साखी महापुरुष बोल दे, सांझी सगल जहाने। महापुरुष वचन किसी एक से करते हैं, होते सबके लिए। मान लो ये बातें, समझो बात को। जय हर सिमरन भय तय उपाद गति कीनी, वड पागी हर चपना। जन नानक को गुर ए मत देनी, जप हर पव जल तरना। नाम 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 की बात है। बस अगर दुनियावी इच्छा है तो नाम से पूरी हो जाएंगी, और यही नाम एक दिन पदार्थ से उठा के परमात्मा तक जोड़ देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन जीवन में आएगा, आप कहोगे अब कुछ नहीं चाहिए वाहिगुरु, बस तू चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस यहाँ पर गुरु हमें पहुँचाना चाहता है। शुरुआत बच्चे से होगी, पर आस्ते आस्ते बड़े भी तो हो ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मांगो जो चाहिए गुरु से, पर किसी का बुरा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमेशा महापुरुष कहते थे नेक मनोकामना पूरी करना। अरदास में कहते हैं नेक मनोकामना, हर मनोकामना नहीं। यहाँ पर तो ऐसी ऐसी मनोकामना रख के बैठे होते हैं, फलाने का सत्यानाश हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसके साथ ऐसा हो जाए, नहीं, ये हमारा काम नहीं। कर भी लो मन में, आखिर में तो यहाँ पे यही कहना पड़ेगा, नानक नाम तेरे पाने। आखिर में तो यही कहेंगे लास्ट में, फिर उसका भला ही मांग के जाएंगे जिसका बुरा सोच के बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बढ़ियाई है इस दर की, कि यहाँ पर किसी का बुरा नहीं, सबका भला। जो हमारा बुरा सोच रहे हैं उसका भी भला हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे, इच्छा नहीं बाँचे। इच्छा नहीं बाँचे, इच्छा नहीं बाँचे। काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे, इच्छा नहीं बाँचे। इच्छा नहीं बाँचे, इच्छा नहीं बाँचे। केवल भगत कीर्तन संग राचे। केवल भगत कीर्तन संग राचे। इच्छा नहीं बाँचे, इच्छा नहीं बाँचे। काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे, इच्छा नहीं बाँचे। नहीं बाँचे, इच्छा नहीं बाँचे।
संग राचे केवल भगत कीर्तन संग राचे इच्छा नहीं बाचे इच्छा नहीं बाचे काम फल की इच्छा नहीं बाँचे इच्छा नहीं बाँचे। धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। दास बार बार एक बात आपसे बेनती कर रहा है कि इन दिनों में विशेष कृपा होती है। तकरीबन जो मुझे गुरमुख सिंह जी ने बताया, हर रोज़ 5 नए सेंटर चालू हो रहे हैं। हर रोज़ प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर रोज़ 5 नए सेंटर जहाँ पे संगत जुड़ रही है। हर रोज़ मुझे कहते हैं लिस्ट देता हूँ अनाउंस, मगर रोज़ अनाउंस करूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सोचो कितनी बड़ी कृपा है, कितनी संगत जुड़ रही है, हिसाब नहीं है। 1500 1550 प्लस प्रोजेक्टर्स पे इस वक्त संगत बैठकर जुड़ी हुई है देशों विदेशों में। इसीलिए दास कहते हैं जब एक पाठ हो रहा होता है ना, तो ये मत सोचना कि इतने पाठ हो रहे हैं, गिनती नहीं है कितने पाठ हो रहे हैं। नित्यनेम जब देखो आप यहाँ पे आने के लिए उठते तो हो, मेरे ख्याल से सब 1:30-2 बजे उठ जाते होंगे आने के लिए। जितने बजे भी आप उठते हो, कोशिश करो कि उठते सारी मोबाइल में जो नित्यनेम चालू वो लगा लो, सुनते सुनते स्नान करो, सुनते सुनते कपड़े पहन लो। ये दिन को इस नित्यनेम को मत छोड़ो। दास तो बेनती करेगा 1:45 बजे जो पाठ शुरू होते हैं उसमें जुड़ जाओ। अगर कोई इतनी जल्दी नहीं उठ सकता, हर कोई नहीं कर सकता, गुरु की मेहर चाहिए, तो जो लास्ट पाठ होता है ना श्री जपजी साहब जी का, वो ज़रूर सुन लेना। वो तकरीबन शुरू होता है मेरे ख्याल से 3:10 के करीब, 3:10 या 3:15 बजे, यही टाइम होगा ज़्यादातर। इस पे ज़रूर जुड़ के हाजिरी भर लेना। आपका मैं पूरे जन्म का नित्यनेम हो जाएगा एक दिन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। ऐसे ही पुण्य बढ़ते हैं। ये कलयुग है, कलयुग के नुकसान बहुत हैं। आप चाहो ना चाहो मोबाइल में कचरा आ जाएगा, नहीं देखना चाहो गलत चीज़ तो भी आपके सामने आ जाएगी। मन को कंट्रोल करना पड़ता है ना। ये कलयुग है, हर चारों तरफ से जोर है। इसका लाभ भी है। इसी कलयुग में आपके हाथ में वो मोबाइल है, आप कीर्तन चला तो कलयुग भाग जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपके हाथ में। कई कहते हैं ना कि सब कुछ भगवान करता है, तो हमारा कर्म कैसे हुआ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझाते थे, नहीं भाई, भगवान ने तुझे आंखें दे दी, अब तूने आंखें बंद करके चलना कि खोल के चलना, ये तेरी मर्जी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बंद करके चलेगा ठोकर खाएगा, खोल के चलेगा बच जाएगा। मर्जी हमारी है। कृष्ण जी से कहा था आप चाहते तो युद्ध ना होता, आप चाहते तो द्रौपदी का वस्त्रण ना होता। कहने लगे मेरे चाहने से होता तो बात ही क्या थी। मैं कर्म का अधिकार किससे नहीं छीन सकता। मैंने कर्म करने की छूट हर एक को दी है। आंखें मिले या ना मिले ये अलग पहलू है। अगर आंखें हैं, अगर फिर भी हम बंद करके चल रहे हैं तो ये हमारी मर्जी है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ने पैसे दिए, गिलास दिया है, अब इसमें शराब ढल के पीनी है उस पैसे से या दूध पीना है, ये हमारी मर्जी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकता, हमारे कर्म है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। ये मोबाइल गुरु ने दिया है, नेटवर्क दिया है, चार्जिंग दिया है, पैसे दिए हैं। अमृत वेले का नित्यनेम चला लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास बार बार कह रहे कोई तो कारण होगा, संभाल लो, जिंदगी जीवन सुख से भर जाएगा। और जहाँ पहुँचने में बहुत साल लगने हैं ना, जल्दी पहुँच जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक।
पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम कावो। आप हाथ दे मोए बचावो। सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए। सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा। और भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ। जो पर जाओ सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारी है। चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उभरी है। मरण काल का त्रास नुवरी है। हो जो सदा हमारे पछा। श्रेयस तुझ जो करियो रक्षा। राख लियो मोए राखण हारे। साहिब संत साहिब प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता। हो पुरी ततर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा। काल पाए शिव जो अवतारा। काल पाए कर विष्णु प्रगासा। सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो। वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो। देव दैत जक्षनि उपजायो। आद अंत के अवतारा। सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी। सकल प्रजा जिने आप सवारे। सेवकन को शिव गुण सुख दियो। सकरन को पल मोहब्बत कियो। कट कट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछानत। चेटी ते कुंजर अस्तोला। सब पर कृपा दृष्ट कर भोला। संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान। कट कट के पट पट की जान। जब उद करख करा कर तारा। प्रजा तर्क तब दे अपारा। जब वह करख करत हूँ कब मैं मिलत दे तर सब। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार। आप आपने मोजे उदार। तुम सब ही ते रहत निरालम। भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब। आद अनिल अनाद असंभव। तांका मूढ़ उचारत भेदा। जाको पेव न पापद भेदा। तांको कर पान अनुमान। महामूढ़ कछ भेद न जान। महान देव को कहत सदा शिव। निरंकार का चीनत न पेव। आप आपनी बुध है जेती। तो पिन पिन तो तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा। कैबज सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा। रंग पयोराव कई कोपा। अंडज जेरज से तज कीनी। कुछ खान बहो रच देने। कहूँ कुल राजा हव बैठा। समट प्यो संकर बैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव। आद जुगाद स्वरूप से अम्बव। अब रक्षा मेरी तुम करो। असक संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता। सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरणी पर। इनके दुष्ट दुखत हव मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे। इनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है। आगे काल निकटने है। रक्षा होई ताए सब काला। दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट संजाय निहारो। आके तापत नगमो हरो। और तो सिद्ध कर्म सब होई। दुष्ट छा छह सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा। पास ते ताए जिन नर नाम तिहारो कहा। दुष्ट लोग ते रहा। खड़ग की तुम्हें शरण तिहारी। आप हाथ दे ले उबारी। सर्व डोर मोह सहाय। दुष्ट लोग ते ले बचाई। खड़ग की तुम्हें शरण तिहारी। आप हाथ दे ले उबारी। सर्व डोर मोह सहाय। दुष्ट दुख ते ले
राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज से मन वजिया वाधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइया आनंद होवा सतगुरु मैं पाया मन मेरा तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना स्वामी सोग मनो विसारे करे नानक मन मेरे सदा रो साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिसने सो पावे तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द मेरे कहे नानक सच्चे सैल क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया करसान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा वाजे पंज शब्द घर सबागे सबद वाजे कला जित करतारियां पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया पाया तू जिनको से नाम रखे लागे कहे नानक दस को आदित करे नदवाजे मन सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे संताप उतरे सुनी सच्ची बानी संत साधन पाए सबसे पूरे गुटे जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रे पर पूरे बिन वंद नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तुरे सलो पवन गुरु पानी पिता माता तक महात जिसराब दाई दया खेले सगल जगत चंगियां बुरियां वाचे धर्म हजूर कर्मी आपो अपने जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया वाहेगुरु 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 जिन्नी नाम ध्याया 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 गए मशक्कत काल नानक ते मुखे छोटे नाल बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा
जय गुरु जी की।